Good morning, sir. Good morning, ma'am. Sir, my screen is visible now. Sir? Yes, ma'am, it's visible. आप start कर सकते हैं. मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. Oh. Now, मैम आपका वॉइस डिस्टॉर्टेड हो रहा है. आपका वॉइस नहीं आ रहा है क्लियरली. I'm on now. I'm good. So, now we are for the last portion of our section of fabric composition. Earlier we have discussed earlier we have discussed being and today we will be discussing about the last which is very important and it is introduced nowadays and as a technological element in the view that we have similar environment, so we have to focus on the concept of recycling. आज्ञा मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन थोड़ा आपका वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. बीच बीच में कट रहा है. तो कुछ तो मैं दोबारा ज्वाइन करूं? मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ज्वाइन दोबारा कर लीजिए आप. हाँ जी मैं कर लेती हूँ सर.
Sir, now I am audible. हाँ मैम, आप ऑडिबल हैं अभी। हेलो। हाँ जी। यस मैम, ऑडिबल ऑडिबल हैं आप। Okay, sir. Good morning to all. So today we are heading towards our last session of the fabric formation. हमने earlier we have discussed the two ways of fabric formation that were knitting and weaving. Now we are heading toward the last fabric formation process, that is non-wovens, and which is nowadays in trend because we people are becoming more and more conscious about the environment and the effect which the used clothes are posing on the a threat which textiles is posing on the environment. So we people are very much focused on the non-wovens textile. So starting with the introduction part, as we all know, वीविंग एंड knitting में हमें फैब्रिक बनाने के लिए यार्न कन्वर्जन चाहिए होता है, बट नॉन वोवन्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसको डायरेक्टली फाइबर से किया जा सकता है. तो सी हियर के लिए फर्स्ट वी हैव टू टेक द फाइबर, हमें फाइबर चाहिए होता है. देन उसके बाद हम उसका यार्न फॉर्मेशन करते हैं एंड लास्टली दी फैब्रिक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब जो ये जो प्रोसेस है, ये फाइबर टू यार्न फॉर्मेशन है, ये बहुत लेंथी है. इसको बनाने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ मशीनरी चाहिए होती है, एक बिग सेटअप चाहिए एंड दैट रिक्वायर्स अ मनी. ओके, and it is also time consuming also. So non-woven is a process in which we can directly make the fabric from the fiber itself. So it has become a easy process nowadays. अब फाइबर, अगर मैं फाइबर की बात करूं तो फाइबर आपके नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क. These mostly cotton is used in the non-wovens, पर आप पॉलीमर्स से भी बना सकते हैं. पॉलीमर्स क्यों लिखा गया है यहाँ पे, पॉलीमर्स स्पेशली इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो केमिकल बेस्ड होते हैं, हमेशा पहले उनके पॉलीमर्स बनते हैं. तो बजाय कि हम उसको पहले फाइबर में एक्सट्रूड करें, हम सिंपली पॉलीमर से ही अपना नॉन वोवन फॉर्मेशन कर सकते हैं. दिस इज द फ्लो चार्ट. We can either start with the polymer and form the non-woven, or we can from the polymer we can form the fiber and then we can follow the process of non-wovens. I hope now you people understood. Coming to the non-wovens, what are non-wovens? Non-wovens वो textile structure हैं they that are produced by interlocking. अभी तक हमने बात करी interlacement की, knitted में बात करी interlooping की. Now it is interlocking और bonding of the fibers or both. ठीक है, या तो हम उन दोनों को interlock कर दे रहे हैं या उनको bond कर दे रहे हैं, या दोनों ही टेक्निक्स हम अप्लाई करके वेब की फॉर्मेशन करते हैं. So it is accomplished by mechanical, chemical, thermal or solvent means or combination of thereof. मतलब सबका combination लेके भी. It is given by the ASTM. A web of fiber is formed. तो क्या होता है, एक फाइबर की जो वेब है फॉर्म हो जाती है. So non-woven are anything that is not knitted, जो knitted ना हो, जो वोवन ना हो, जो टफ्टेड ना हो और जिसमें कोई यान आपको दिखाई ना दे, ऐसा सब कुछ. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा दूंगी, जो हम यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए स्क्रब यूज करते हैं, यू कैन सी दैट वो नॉन वोवन स्ट्रक्चर होता है. उसमें आपको फाइबर, ग्रीन कलर का जो स्क्रब पैड आता है उसमें आपको फाइबर्स दिखाई देंगे इजीली. So that is a non-woven product which we are using in day-to-day life. A non-woven fabric is manufactured sheet, web or bat of directional or random oriented fibers. ठीक है, वो जो शीट है उसमें फाइबर्स या तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकते हैं या रैंडमली ओरिएंटेड हो सकते हैं, जिनको बॉन्ड किया जाता है बाय फ्रिक्शन और कोहेजन और एडिशन, एक्सक्लूडिंग पेपर. पेपर नॉन वोवन्स में नहीं आता, पेपर भी ऐसे ही बनता है बट उसको नॉन वोवन्स में नहीं लिया गया है. ठीक है. नाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉन वोवन, अगर मैं बात करूं, इसका बेसिक यूनिट है आपका फाइबर, अरेंज्ड इन वेब एंड कंसोलिडेटेड.
वेब की फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया जाता है और उसको कॉम्पैक्ट बना दिया जाता है. डिस्टेंस बिटवीन फाइबर इज मच ग्रेटर देन फाइबर डायमीटर. द वेट ऑफ वेब इज यूजुअली लो. उसका जो वेट होता है वो भी बहुत कम होता है. रिजल्ट इन थिन पोरस वेब मटेरियल. तो वो स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन सा स्ट्रक्चर बनता है नॉन वोवन से. ठीक है. अब हिस्ट्री क्या है नॉन वोवन्स की, कैसे इसकी ओरिजिनेशन हुई, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वोवन केम इनटू एग्जिस्टेंस इज 19th सेंचुरी में क्या था, इंग्लैंड वाज द लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री. रियलाइजिंग दैट, जब वो गारमेंट्स बनाते थे तो उसके एक इंजीनियर ने देखा कि बहुत ज्यादा ट्रिम्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं. आपको पता है ना, कटिंग्स हम निकालते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चर करते टाइम, तो उसने देखा दिस इज गिविंग अ लॉट ऑफ वेस्टेज. उसका नाम था गैमेट. ही डेवलप्ड अ स्पेशल कार्डिंग डिवाइस. उसने क्या किया, वो जो फैब्रिक के कटिंग छोटे छोटे जो कट एंड्स थे या कटिंग्स थी, उसको उस कार्डिंग मशीन में डाल के उसको क्लोज में भरना शुरू कर दिया था. दिस वाज द इन्वेंशन. तो दिस इज हाउ नॉन वोवन केम इनटू एग्जिस्टेंस. और उसकी मशीन को नाम भी गार्नेट मशीन ही दिया गया है, दो ग्रेटली मॉडिफाइड. आजकल उसमें मॉडिफिकेशन हो गई है, बट नॉन वोवन्स का कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली केम फ्रॉम द इंग्लैंड इटसेल्फ. अब डिस्कशन. द ग्रेट एडवांटेज इन नॉन वोवन फैब्रिक इज स्पीड. जिस स्पीड पे फाइनल फैब्रिक आपका प्रोड्यूस हो जाता है वो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है. ये देखिए, वीविंग का रेट ऑफ प्रोडक्शन 1 मीटर पर मिनट, निटिंग का 2 मीटर पर मिनट, बट नॉन वोवन्स इज प्रोड्यूस्ड एट 100 मीटर पर मिनट. आप देखिएगा इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो कितना हाई है. ठीक है. अब ऑल दी यार्न प्रिपरेशन स्टेप्स आर एलिमिनेटेड. ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया. यहाँ पे हम डायरेक्टली एक फाइबर से फैब्रिक बना रहे हैं, तो यार्न बनाने का जो स्टेप है दैट इज स्पिनिंग का, होल स्पिनिंग लाइन एलिमिनेट हो गई. ठीक है. द फैब्रिक प्रोडक्शन इटसेल्फ इज फास्टर. अब वो चीज एलिमिनेट होगी तो ऑब्वियसली जो फैब्रिक प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगा. अब ये देखिए, टू प्रोड्यूस 5 लाख मीटर्स ऑफ वोवन शीट रिक्वायर्स 2 month ऑफ यार्न प्रिपरेशन. मतलब अगर हमने 5 लाख का फैब्रिक बनाना है, मीटर्स का फैब्रिक बनाना है, उसके लिए 2 महीने हमें यार्न बनाने के लिए चाहिए, 3 महीने वीविंग के लिए चाहिए, जिसमें हमें 50 लूम्स लगानी पड़ेंगी, और 1 month फिनिशिंग और उसमें इंस्पेक्शन के लिए चाहिए. तो अल्टीमेट हमारा ये जो प्रोसेस हो गया 6 months का हो गया फैब्रिक फॉर्मेशन का. 5 लाख का फैब्रिक अगर हमने बनाना है 5 लाख मीटर्स का, लेकिन नॉन वोवन कैन डिलीवर दी सेम क्वांटिटी ऑफ शीटिंग विद इन 2 months ऑफ ऑर्डर. देखिए टाइम कितना रिड्यूस हो गया, फ्रॉम दी 6 months टू ओनली 2 months. Not only production rate are higher in non-woven, the process is more automated. Obviously process भी automated हो गया, जिसमें labor की requirement कम है. मॉडर्न मशीन, नॉट इवन मॉडर्न मशीनरी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत मॉडर्नाइज मशीनरीज चाहिए. द नॉन वोवन प्रोसेस इज ऑल्सो एफिशिएंट इन यूज ऑफ एनर्जी. ऑब्वियसली एनर्जी का यूज भी कम होता है. कंपैरिजन बिटवीन वोवन्स एंड नॉन वोवन. अगर मैं नॉन वोवन और वोवन की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में क्या है, वोवन जो है बहुत सालों से चलता आ रहा है, डेकेड से चलता आ रहा है, एक ओल्ड फैशन में काउंट होना शुरू हो गया है. ठीक है. बट ये जो नॉन वोवन है ये फ्यूचर फैब्रिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको जो इन्वेंट हुए फ्यू डेकेड्स ही हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज आउटडेटेड एंड आउटसोर्स टू अदर कंट्रीज. और जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके लिए वोवन एक आउटसोर्स फैब्रिक हो गया है. लेकिन नॉन वोवन क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑफर इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्रीज इन यूएसए. इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चांसेस हैं. नॉट वेरी इफेक्टिव टू बैरियर गारमेंट. जहाँ पे हमें बैरियर प्रॉपर्टीज चाहिए वहां पे वोवन वो प्रॉपर्टीज नहीं दे पाता जो नॉन वोवन आपको प्रोवाइड कर देता है. वोवन फैब्रिक आर एक्सपेंसिव, दीज आर लेस एक्सपेंसिव. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसका मैन्युफैक्चरिंग स्पिनिंग आपको करनी नहीं पड़ी, तो ऑब्वियसली एक बहुत लंबी स्पिनिंग लाइन आपने एलिमिनेट कर दी, तो वो सस्ता है. आपके गारमेंट, आपके होम फर्निशिंग, इसके एग्जांपल्स हैं मेडिकल गारमेंट जो आप आजकल देख रहे हो, पीपी किट्स जो डालते हैं, मास्क जो पहन रहे हैं, दीज ऑल आर नॉन वोवन्स. अब
ड्राइवर्स ऑफ नॉन वोवन, अब इवेंचुअली इस मॉडर्न इरा में क्या चीजें हैं जो नॉन वोवन्स को ड्राइव कर रही हैं? फर्स्ट इज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आजकल प्रिंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आ रहे हैं, उन टेक्निक्स को अच्छे से, उसकी क्लैरिटी और उसकी फाइनेस को अच्छे से लाने के लिए नॉन वोवन्स को यूज किया जाता है। सेकंड इज दी नीड फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। आपको एक यूनिक चीज भी चाहिए और आपको चाहिए कि पैसे उसमें कम लगे, आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसमें हो, तो उस नीड को ध्यान में रखते हुए नॉन वोवन्स आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज। स्टेप्स फॉर नॉन वोवन फैब्रिक प्रोडक्शन। क्या क्या स्टेप्स हैं नॉन वोवन फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए? फर्स्ट है वेब फॉर्मेशन और उसके बाद है बॉन्डिंग। पहले आपने वेब फॉर्मेशन कर ली, फाइबर्स को कैसे ले करना है, दिस इज वेब फॉर्मेशन। ये देखिए फाइबर्स को ले किया गया है और उसके बाद उनको कैसे आपस में कॉम्पैक्टनेस या कैसे उनको आपस में जोड़ना है, दैट इज बॉन्डिंग। कौन कौन से फाइबर्स यूज किए जाते हैं नॉन वोवन्स के लिए? कॉटन, विस्कोस, लायोसेल, पॉलीएक्टाइट, पॉलीलेक्टाइट। देन इज मैनमेड में पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, बाय कंपोनेंट फाइबर और रिसाइकिल फाइबर्स यूज होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप कमिंग टू दी नाउ नॉन वोवन्स प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फाइबर ओपनिंग। अगर मैं कॉटन की बात करूं, अगर हम फील्ड से कॉटन ला रहे हैं तो उसको पहले अच्छे से ओपन किया जाता है। फाइबर ओपन, वो बेल फॉर्म में आते हैं तो फाइबर्स को अच्छे से अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो दिस इज द बेल ब्रेकर। ये क्या करती है, ये देखिए बेल्स में आपका फाइबर इंडस्ट्री में आ जाता है, तो इस बेल ब्रेकर की हेल्प से हम फाइबर्स को ओपन आउट करते हैं। नेक्स्ट, अब नॉन वोवन्स की क्लासिफिकेशन क्या है? वेब फॉर्मेशन, कैसे आपने उसकी वेब बनाई? तो कार्डेड, एयरलेड, वेटलेड। वेब फॉर्मेशन में स्पन बाउंड और मेल्ट ब्लोन भी आ जाते हैं अगर पॉलीमर से बात कर रही हूँ। देन बॉन्डिंग मेथड्स में केमिकल, नीडल पंच, स्पन लेस्ड एंड थर्मल बॉन्ड। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कैसे आपने नॉन वोवन को प्रोड्यूस किया, उसके अकॉर्डिंग इट कैन बी क्लासिफाइड एज वेट बॉन्डेड, ड्राई बॉन्डेड, स्पन बॉन्डेड। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी ऑफ रॉ मटेरियल, कैसा रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, दैट इज स्टेपल फाइबर एंड फिलामेंट फाइबर नॉन वोवन। देन दी एंड यूज, कहाँ पे आपने उसका यूज करना है? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और डिस्पोजेबल। आप कैसा डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं या सेमी ड्यूरेबल बना रहे हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट। एंड अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टीज, आप कैसी प्रॉपर्टीज उसको इम्पार्ट कर रहे हैं? फ्लेम रिटार्डेंट, आई होप एवरीबडी रिमेम्बर कि फ्लेम रिटार्डेंट क्या है, कि उसमें आग ना लगे। वाटर रेपेलेंट, कि पानी को वो पेनिट्रेट करने से रोके। या वाटर एब्जॉर्बेंट, आपको कैसी प्रॉपर्टी चाहिए कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करे। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वोवन डिपेंडिंग अपॉन जैसे हमें चाहिए हम इसको करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एब्जॉर्बेंसी दे सकते हैं, बैक्टीरियल बैरियर प्रॉपर्टीज इम्पार्ट कर सकते हैं, कुशनिंग दे सकते हैं, इसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लेम रिटार्डेंसी, लिक्विड रेपेलेंसी, रेजिलियंस, सॉफ्टनेस, स्टेरिलिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेच एंड वॉशेबिलिटी। दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन वोवन्स। अब रिक्वायरमेंट क्या है? पहले तो आपको बेसिक मटेरियल चाहिए जो फाइबर है, फिर आपको केमिकल चाहिए जो उसको बॉन्ड आउट करेगा, देन आपको ऑक्सिलरी एजेंट्स चाहिए जो उसको फिनिशिंग प्रोवाइड करेंगे, जो आप उसको प्रॉपर्टीज देना चाहते हो, तो वो वाले आपको चाहिए। कमिंग दी वेरी फर्स्ट स्टेप, हमने देख लिया बेल ब्रेकर था, उसने फाइबर्स को ओपन आउट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका वेब फॉर्मेशन। वेब कैसे फॉर्म होती है? देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेब फॉर्मेशन, दैट इज पैरेलल लेइंग, क्रॉस लेइंग, एयर लेइंग, वेट लेइंग, ड्राई लेइंग, वुड पल्प, स्पन लेइंग एंड मेल्ट ब्लोन। ये डिफरेंट आपको मैं थोड़े से मेथड्स बताऊंगी। पैरेलल लेइंग क्या है? जब आप फाइबर को पैरेलली एक के ऊपर एक, ये देखिएगा यहाँ पे आप सिलेंडर्स देख रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रीम जा रही है फाइबर्स की, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, मतलब ऑल फाइबर्स आर लेइंग पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लेइंग। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड नाउ। दिस इज जब आप किसी फाइबर को, किसी एक सतह को दूसरी सतह के बिल्कुल एक पैरेलल रख रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पैरेलल लेइंग।
तो इसको वेब फॉर्मेशन में पैरेलल लेइंग भी यूज करते हैं। इसका है द वेब फ्रॉम ईच कार्ड रोल फॉल्स ऑन दी लेटिस। ये एक लेटिस रोलर होता है जो बैट बना रहा है, ठीक है। कार्डेड वेब आर टर्न्ड एट राइट एंगल, उनको राइट एंगल पे टर्न किया जाता है सो दैट सारे फाइबर्स उस पे पैरेलल गिरे। Since parallel lying of all card web are parallel to each other, it follows that most fiber will lie along the bat and very few across it. तो सारे के सारे fibers हैं वो इसी डायरेक्शन में lie करते हैं। This is called parallel line. पैरेलल लाइन क्या है? जिसमें आपके सारे फाइबर्स पैरेलली एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस लाइन। जब आप फाइबर्स को इस डायरेक्शन में लेआउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस लाइन। मतलब आप एक राइट एंगल पे उसको ले कर रहे हैं। When cross laying, the card are placed at 90 degree to the conveyor belt. ये कन्वेयर बेल्ट है और आपकी कार्ड जो है जहां से आपके फाइबर्स गिनने हैं वो ऐसे प्लेस होंगे कि फाइबर्स आपके इस डायरेक्शन में लाई करे उस लेटस पे। दिस इज नोन एज क्रॉस लेइंग। अब क्रॉस लेइंग की एक प्रॉब्लम है, वन इज दैट दे टेंड टू ले दी बैट हैवियर। इससे बैट जो है आपकी हैवियर बनती है, मोटी बनती है। और कहाँ पे एजेस पे ज्यादा मोटी बनती है, इन स्पाइट ऑफ दी मिडल। मिडल में पतली होती है और एजेस पे मोटी बनती है। हाउएवर इट इज नॉट बिकॉज क्रॉस लाइन इज नॉर्मली लेस देन 10 डिग्री, बट इसमें मोस्टली फाइबर्स जो है क्रॉस डायरेक्शन में ही लाई करते हैं। नेक्स्ट इज रैंडम। रैंडम आपको नाम ही बता रहा है, कहीं भी अगर आप फाइबर्स को ले कर देते हैं, फाइबर्स को ऐसे फेंक रहे हैं कि फाइबर्स कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, दैट इज रैंडम। ये देखिए यहाँ से फाइबर आ रहा है, इस सिलेंडर के ऊपर से जा रहा है और यहाँ पे गिरेगा। यहाँ पे एक एयर का स्टीम दिया होता है, तो वो क्या है, अगर आपने एयर लगा दी, फाइबर यहाँ से गिर रहा है तो फाइबर विल फ्लाई आउट एंड विल लाई एनीवेयर जहाँ पे डायरेक्शन उसकी होगी रैंडम, दैट इज कॉल्ड रैंडम लाइन। अब एयर लेड क्या है? ड्राई लेड वेब फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसमें हम एयर का यूज करते हैं फाइबर्स को ले डाउन करने के लिए। लॉन्ग फाइबर्स को ओपन किया जाता है, उनको ब्लेंड किया जाता है, फिर उनको एक स्क्रीन पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। द एयर स्ट्रीम कैरीज द फाइबर टू द कन्वेयर एंड फॉर्म्स द वेब। अब वेट लेड, जहां पे हमने एयर यूज करी थी फाइबर्स को लाई करने के लिए किसी बेल्ट पे, हम पानी का यूज कर रहे हैं फाइबर्स को सस्पेंड करने के लिए। The fibers are suspended in water and then collected on screen forming the web. वाटर को फिर उसे वैक्यूम की हेल्प से ड्रेन कर लिया जाता है, सुखा दिया जाता है और फाइबर्स को प्रेस करके निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट इज स्पन लेइंग। स्पन लेइंग में क्या है? स्पन लेइंग इंक्लूड्स एक्सट्रूजन ऑफ फिलामेंट फ्रॉम द पॉलीमर। स्पन लेइंग आपकी होती है जब आप कोई सिंथेटिक फाइबर यूज कर रहे हैं। मोस्टली जब ये देखिए ये होपर है, यहाँ पे हम पॉलीमर्स डाल देते हैं, उनको मेल्ट कर दिया जाता है, फिर ये एक्सट्रूडर से यहाँ पे बाहर आता है और हम उसको फिर वाटर जेट की हेल्प से उसको ले डाउन करते हैं। Spun laying includes extrusion of the fiber from the polymer raw material, drawing the filament and laying them into bat. पहले उसके फिलामेंट्स बना लिए जाते हैं, पॉलीमर को मेल्ट कर लिया जाता है। आपने देखा होगा, इस प्रोसेस को मैं इजीली समझा सकती हूँ। जैसे हम घर में सेमिया बनाते हैं मैदे की, तो क्या होता है उसमें एक छन्नी लगी होती है। वी पुट द मैदा विच इज, उसको आटे के फॉर्म में गूंद के वी पुट इट देयर और उसको रोटेट करके हम नीचे से, वो स्पिन रेट लगा होता है और पतली पतली सेमिया बाहर निकलती है। इन सिमिलर वे ये जो फिलामेंट्स हैं ऐसे ही बनाए जाते हैं। आपके पॉलीमर्स को मेल्ट कर दिया जाता है एक्सट्रूडर में, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे हीटेड होता है, और उसको स्पिन रेट के थ्रू निकाला जाता है, फिर उसकी लेइंग डाउन करी जाती है। नेक्स्ट इज मेल्ट प्लोन। मेल्ट प्लोन प्रोसेस है फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी फाइन फाइबर्स एट दी हाई प्रोडक्शन रेट। पॉलीमर्स को मेल्ट किया जाता है, उनको एक्सट्रूड किया जाता है, बट इसमें जो होल्स का साइज है वो बहुत बड़ा होता है। अब ये थे वेब लाइन, कैसे आपने वेब को ले करना है। हमने पढ़ा पैरेलल लाइन, क्रॉस लाइन, रैंडम, एयर, वाटर, स्पन लेड and melt blown. These were the processes. Only you have to remember
मतलब अगर पैरेलल लिंक की बात कर रहे हैं तो जो वेब है वो हमेशा पैरेलल डायरेक्शन में लाई करेगा। क्रॉस लिंक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रॉस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में वो लाई करेगा। रैंडम मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप फाइबर्स को ले डाउन कर सकते हैं, जैसे आपके स्कॉच ब्राइट में होते हैं। नेक्स्ट इज योर स्पन लिंक। आप पॉलीमर्स फिलामेंट्स को मेल्ट करके उसको ले डाउन कर रहे हैं। मेल्ट ब्लोन मतलब गर्म हवा की हेल्प से आप उसको ले डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने वेब बना ली, अब उसके फाइबर्स ऐसे तो है नहीं कि आपस में जुड़ गए हैं, पर उनको जोड़ना भी बहुत जरूरी है और उसको कॉम्पैक्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए वी यूज बॉन्डिंग सिस्टम्स। So there are different bonding systems. First is the chemical bonding, thermal bonding, solvent, needle punching, stitch bonding and hydro entanglement. Chemical bonding में different methods हैं: saturation bonding, form bonding, print bonding and spray bonding. Chemical bonding involves treating either the complete bat or isolated portion of bat with the bonding agent with the intention of sticking the fiber together. इसमें कोई केमिकल लगा दिया जाता है फाइबर्स के ऊपर सो दैट वो आपस में स्टिक कर जाए। दैट प्रोसेस जहां पे हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं फाइबर वेब को जोड़ने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब सैचुरेशन बॉन्डिंग क्या है? ये केमिकल बॉन्डिंग का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि सैचुरेशन बॉन्डिंग वेट्स द होल बैट। पूरी जो बैट है जो आपने वेब फॉर्मेशन करी थी, उस पूरे को एक बॉन्डिंग एजेंट से वेट कर दिया जाता है, जिसमें बाइंडर होता है सो दैट फाइबर्स उससे जुड़ जाएं। और द एक्शन ऑफ लिक्विड ग्रेटली रिड्यूस द थिकनेस, फिर उसकी थिकनेस रिड्यूस हो जाती है और स्क्वीज रोलर के थ्रू पास कर लिया जाता है। उसको बोलते हैं सैचुरेशन बॉन्डिंग। आपने पूरी वेब को किसी बाइंडर और बॉन्डिंग एजेंट से फिल कर दिया है, उसको सूखने के लिए रख दिया है और एक्सेस जो बाइंडर था उसको आप एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं और उस वे में आपका वेब है जो आपस में, जो फाइबर्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं, उस प्रोसेस को आप बोलते हो सैचुरेशन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है फॉर्म बॉन्डिंग। सैचुरेशन में एक प्रॉब्लम थी कि उसमें पानी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही थी, आपको बहुत ज्यादा बाइंडिंग एजेंट यूज करना पड़ता था। तो अब फॉर्म बॉन्डिंग वाज द इन्वेंशन टू कवर अप द डिसएडवांटेज। इसमें क्या है, जो बॉन्डिंग एजेंट है या बाइंडर है उसको फॉर्म की वे में उस पर स्प्रे किया जाता था so that जो फाइबर वेब है आपस में चिपक जाए। It is inferred that one of the problem of saturation bonding is too much of water is used. बहुत ज्यादा पानी यूज होता था उसमें। It not only increases the cost of drawing but also increases the risk of binder migration. तो obviously पानी बहुत ज्यादा यूज होएगा तो आपको ज्यादा देर के लिए उस वेब को ड्राई करना पड़ेगा। जितने ज्यादा ड्राइंग सिलेंडर लगाओगे कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर था। तो बाइंडर सॉल्यूशन एंड मेजर वॉल्यूम ऑफ एयर आर पास्ड कंटिन्यूसली। इसमें क्या है, बाइंडर सॉल्यूशन और एयर को इकट्ठा करके उसको प्रेशराइज्ड टरबाइन के थ्रू पास किया जाता है, फिर उसको वेब पे डाला जाता है सो दैट फॉर्म की हेल्प से जो आपकी वेब पार्टिकल्स हैं आपस में जुड़ जाए। नेक्स्ट है प्रिंट बॉन्डिंग। प्रिंट बॉन्डिंग में क्या है कि एप्लीकेशन इज लिमिटेड टू एरियाज इन सेट पैटर्न। आप एक पैटर्न बना लेते हो कि डॉटेड, जैसे मैंने आपको फ्यूजिंग के टाइम पे बताया था कि हम जो बाइंडर है पर्टिकुलर प्लेसेस पे लगा देते हैं और वेब को बाइंड करने के लिए रख देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज स्प्रे बॉन्डिंग। स्प्रे बॉन्डिंग में क्या है, यू यूज प्रेशराइज्ड जेट और बाइंडिंग एजेंट को वेब के ऊपर आप स्प्रे करते हैं। सिमिलर लेटेक्स बाइंडर्स में बी अप्लाइड बाय स्प्रेइंग यूजिंग दी स्प्रे गन्स। स्प्रे गन्स का यूज किया जाता है similar to those used in painting, which may be either operated by compressed air or be airless. या तो उसमें एयर का प्रेशर दिया जाता है so that वो स्प्रे अच्छे से हो जाए। On the first passage, the spray penetrates 5 mm into the top surface, then the bat वो 5 mm तक जाता है, फिर बैट को टर्न करके फिर दोबारा स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रो एंटेंगलमेंट। हाइड्रो एंटेंगलमेंट, हाइड्रो नाम बता रहा है, आप हाइड्रो मतलब पानी, आप पानी का यूज करके उस वेब के जो फाइबर्स हैं उनको आपस में एंटेंगल कर रहे हैं। हाइड्रो एंटेंगलमेंट बाय वाटर जेट इज रिलाई ऑन फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड फाइबर एंटेंगलमेंट, आल्सो नोन एज वाटर बॉन्डिंग। ठीक है,
the name implies, the process depends upon jets of water. वाटर का जेट, बहुत हाई लेवल का जो प्रेशराइज्ड वाटर जेट है वो आप अपने वेब पे स्प्रे करते हैं सो दैट जो फाइबर्स हैं आपस में एंटेंगल हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है नीडल पंचिंग। नीडल पंचिंग, ये देखिए, ये नीडल्स का बैट है, ये जो वेब है वो होता है। ठीक है, ये नीडल प्लेट्स है या स्ट्राइपर प्लेट्स है। तो नीडल्स वेब पे एक्ट करती हैं और जो वेब के फाइबर्स हैं उनको फाइंड आउट कर देती है। नीडल पंच नॉनवोवन आर क्रिएटेड बाय मैकेनिकली, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इंटरलॉकिंग द फाइबर्स ऑफ स्पन बॉन्ड और कार्डेड वेब। दिस इज अचीव बाय थाउजेंड ऑफ बाबर नीडल्स। ये बहुत सारी थाउजेंड नीडल्स लगी होती हैं जो रैपिडली पासिंग इन एंड आउट, बार बार इस वेब के, दिस इज वेब, इसके आर पार वो पास करती है और वेब के फाइबर्स को आपस में एंटेंगल कर देती हैं। इसको बोलते हैं नीडल पंचिंग। मोस्टली आजकल जो नॉन वोवन्स बनाने के लिए नीडल पंचिंग टेक्निक का मोस्ट यूज किया जाता है। द बॉन्डिंग यूजिंग नीडल रिक्वायर्स, बिकॉज इसमें कोई वाटर नहीं होता और ये बहुत कम एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम होती है। इट इज हाई परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी रियलाइजिंग हाई थ्रूपुट स्पीड्स एक्सीडिंग 150 मीटर्स पर मिनट। एक मिनट में 150 मीटर्स तक का फैब्रिक प्रोड्यूस कर देती है। तो मोस्टली अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा नॉन वोवन मैन्युफैक्चरिंग या बॉन्डिंग टेक्निक यूज करी जाती है, it should come to your mind that is needle punching। ये देखिए, ये नीडल पंच सिलेंडर्स हैं जिन पे नीडल्स माउंटेड होती है। तो दिस इज द टेक्निक। ये फाइबर की वेब है, इसको पास करते हैं, ये नीडल बोर्ड है जिसपे नीडल्स लगी होती हैं, इसको यहाँ से मोशन दी जाती है एंड नीडल्स मूव अप एंड डाउन थ्रू दी वेब और वो फाइबर्स को बाइंड कर देती है। उसके बाद फाइबर जो आपका जो नॉन वोवन है फैब्रिक, वो फॉर्म होके उसको आप रोलर्स पे बाउंड कर देते हैं। दिस इज दी नीडल पंचिंग। नीडल पंच के मोस्ट एप्लीकेशंस है आजकल के ट्रेंड में, सिनेरियो में। ट्रेडिशनली उसको अपैरल्स, होम टेक्सटाइल, क्लीनिंग वाइप्स, जो आप फेस क्लीनिंग वाइप्स यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो नीडल पंच। ब्लैंकेट, फ्लोर एंड वॉल कवरिंग, डेकोरेशन फेल्ट्स, पैडिंग, इंटरलाइनिंग, इन सब के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूं तो उसमें मेडिकल, हाइजीन, जियो टेक्सटाइल्स में, ड्रेनेज में, ऑटोमोटिव, प्रोटेक्टिव अपैरल्स में, रूफिंग, फिल्टर्स और पेपर मशीन फेल्ट्स में इसका यूज किया जाता है। दीज आर दी एंड प्रोडक्ट्स। अब मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, एक है हाइड्रो एंटेंगलमेंट, एक है नीडल पंच। इन दोनों को कलेक्टिवली नाम हाइड्रो एंटेंगलमेंट भी दिया जाता है। हाइड्रो एंटेंगलमेंट में वाटर का यूज करते हैं और नीडल पंच में नीडल का। इन दोनों प्रोसेसेस को मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। ये देखिए, ये आपकी वेब है जो वेब फॉर्मेशन के बाद आपके पास आ रही है। ये जेट ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर है जो आपकी वेब पे फॉल करता है और वो क्या करता है, फाइबर्स को आपस में बाइंड कर देता है। नीचे सक्शन स्लॉट्स लगे हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को सक आउट कर लेते हैं और वेब को ड्राई होने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट इज थर्मल बॉन्डिंग। थर्मल बॉन्डिंग में आप हीट और प्रेशर का यूज करते हैं। जो आपने वेब फॉर्मेशन करी है उसमें फाइबर्स को मेल्ट कर देते हैं और उसके बाद जो वेब है वो आपकी बाउंड हो जाती है। तो बॉन्ड फाइबर्स बाय अप्लाइंग हीटेड एयर स्ट्रीम, जो एयर है हाईली हीटेड टेम्परेचर पे होती है, हीट और प्रेशर का यूज करते हैं, रिजल्ट इन मेल्टर फाइबर विच बॉन्ड्स टुगेदर। ये देखिए, यहाँ से आप वेब की फीडिंग करते हैं। जो अनबॉन्डेड वेब है, ये हीटेड सिलेंडर है जिसके अंदर हॉट एयर होती है, परफोरेटेड ड्रम है, ये पास करता है आपकी वेब से और ये आपके फाइबर्स को बाउंड कर देता है। उसके बाद जो वेब है उसको आप टेकअप रोलर पे ले लेते हो। सो दीज वर हाउ नॉन वोवन इज फॉर्म। हमने बात करी वेब फॉर्मेशन की, देन हमने बात करी बॉन्डिंग टेक्निक्स की। अब हमारा फैब्रिक बन गया है। लास्ट स्टेप है फिनिशिंग। फिनिशिंग जैसे कि मैंने बताया, जो भी आप उसको प्रॉपर्टी देना चाहते हो, फ्लेम रिटार्डेंसी देना चाहते हो, रेपलेंसी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो जैसे कि हम वोवन फैब्रिक में फिनिशिंग देते हैं, सेम फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स कैन बी गिवन हियर। Performance properties include functional characteristics such as moisture regain, absorbency, flame retardancy,
and frictional behavior. अब एप्लीकेशन ऑफ नॉन-वोवेंस, नॉन-वोवेंस की आज के डे में काफ़ी एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंटीरियर, होम फर्निशिंग में, प्रिंटिंग मटेरियल में, फिल्टर मीडिया में, केबल रैपिंग में, टेनिस कोर्ट में, ब्लैंकेट ऑटोमेटिव कारपेटिंग में, सरफेस शटल जो आपके इवन की रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनमें भी नॉन वोवेंस यूज होता है, शू फेल्ट्स में, मैरीन हट्स में, रूफिंग मटेरियल, ऑटोमेटिव इंसुलेशन। अगर मैं मेडिकल में बात करूं तो सर्जिकल गाउन, सर्जिकल ड्रेप, सर्जिकल स्क्रब सूट्स, कैप्स और आजकल के कोरोना वायरस के जो मास्क हैं, पीपीई किट्स, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ द नॉन वोवेंस। तो कॉटन एक फाइबर है जो ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि डायपर्स में, बेबी वाइप्स में, फेमिनिन नैपकिन्स में, टैम्पून्स में, अडल्ट इनकंटीनेंस प्रोडक्ट्स में। नॉन वोवन का यूज जियो टेक्सटाइल में भी होता है। जियो टेक्सटाइल वो है जहाँ पे आप रोड बनाने के लिए नॉन वोवन, ये देखिए जो रोड है उसको बनाने के लिए नॉन वोवन का यूज किया जा रहा है। A lot of geotextiles are made from non-woven. Non-woven geotextile which have a texture of felt. They are quicker and cheaper. Also have a short lifespan, so nothing to have reinforced. तो नॉन वोवन पाइप्स, देखिए पाइप्स भी नॉन वोवन आ रही है, नॉन वोवन फिल्टर, लोड बियरिंग शीट, जियो मेम्ब्रेन्स एंड जियो कंपोजिट्स में नॉन वोवन का यूज हो रहा है। हाइजीन की मैं बात करूं तो बेबी डायपर्स, फेमिनिन हाइजीन, सैनिटरी नैपकिन्स, अडल्ट इनकंटीनेंस पैड्स, वेट वाइप्स, बैंडेजेस, डिस्पोजेबल बाथ एंड फेस टॉवल्स, डिस्पोजेबल स्लीपर्स एंड फुटवेयर्स में भी नॉन वोवेंस का यूज हो रहा है। अब फिल्टर्स की मैं बात करूं, जो आपकी इंडस्ट्री में चिमनीज पे फिल्टर लगे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ नॉन वोवेंस। देन वाटर, कॉफी एंड टी बैग्स जो आप यूज करते हैं डिप वाले, दे आर मेड फ्रॉम दी नॉन वोवेंस। देन इज लिक्विड कार्टेज एंड बैग फिल्टर्स, मिनरल प्रोसेसिंग, वैक्यूम बैग्स, इन सब में नॉन वोवेंस यूज हो रहा है। जियो टेक्सटाइल की हमने बात कर ली। देन एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वी आर यूजिंग नॉन वोवन। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं, ग्रीन हाउसेस बनाते हैं, दे आर मेड फ्रॉम दी नॉन वोवन। इससे क्या है, जो सीड है अच्छे से ग्रो करता है और उसकी जो फ्रूट्स हैं या फूड जो हमें फूड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो अच्छी वैरायटी के होते हैं। देन इन शूज, शूज में लाइनर्स, काउंटर लाइनर्स, इंटर लाइनर, रेनफोर्सिंग मटेरियल में नॉन वोवन आपका यूज किया जाता है और ये हेल्दी, आपका फूड हेल्दी रहता है और कंफर्ट भी अच्छा देता है। देन इज पैकेजिंग मटेरियल में फूड को रैप करने के लिए चीज एंड फिश रैपर्स, टी एंड कॉफी बैग्स, एब्जॉर्बिंग पैड, सैक्स जो आपकी बोरियां हैं, बैग्स हैं उसमें, एनवेलप्स में, देन शीट्स में, ये सारा आपका नॉन वोवन यूज किया जा रहा है। हाउस होल्ड में दिस एलमीरा, इवन की द शू Elmira is made up of the non-woven material. This China non-woven carpet is there. So floor covering, upholstery material and webbings में आपका non-woven यूज हो रहा है। अगर मैं ऑटोमोटिव में बात करूं, ये देखिए मैक्सिमम जो कार के इंटीरियर में प्रोडक्ट लगे हुए हैं, दे आर ऑफ non-woven। आप बात कर लें इन कार, नॉन वोवन आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैवी मेटल्स। आजकल नॉन वोवन क्या कर रहा है, हैवी मेटल्स को रिप्लेस कर रहा है। It is used in tank, wheels and barriers. Components of the seat, disposable headrest covers, covers of the inner panels of car, जो कार के inner panels होते हैं वहां पे भी आपका जो है नॉन वोवन ही यूज किया जा रहा है। So ultimately you can see 24/7 we are using non-woven, starting with the 7 AM. If we go for walking, we are wearing a non-woven shoe, ठीक है, जिसमें नॉन वोवन इंटरलाइनिंग है। 8:30 में अगर हम कोई फूड खा रहे हैं, उसको बनाने के लिए इवन की जिसमें वो डाल के खा रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ नॉन वोवन। ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी के इंटीरियर में नॉन वोवन है, जहाँ पे आपका वर्क, इवन दी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और दी अदर इंजीनियर्स हु आर वर्किंग, दे आर वियरिंग दी नॉन वोवन। आप बैगेज या सूटकेस कैरी कर रहे हैं, ये नॉन वोवन से बने होते हैं। तो कोरोना के टाइम में वी आर वियरिंग, एवरीबडी इज वियरिंग मास्क, दे आर ऑफ नॉन वोवेंस। ये तो अब हमारा एलिमेंट्री प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग बन गई है
सो एवरीवेयर एग्रीकल्चर में नॉन वोवन है, जिस रोड पे हम जा रहे हैं वो नॉन वोवन है, जिस पिल्लो पे हम सो रहे हैं वो नॉन वोवन है. सो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी आर यूजिंग नाउ डेज इज मोस्टली मेड अप ऑफ नॉन वोवन. तो इसकी नॉलेज होना आई थिंक इज मोर नेसेसरी. परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, परफॉर्मेंस प्रोफाइल ऑफ नॉन वोवन, आप परफॉर्मेंस को कैसे किन कैटेगरीज में जज करते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ, सॉफ्टनेस, एब्जॉर्बेंसी, फिल्टरिंग एबिलिटी. अब जैसे मैं बात करूं, मास्क हम जो पहनते हैं तो उसमें देखते हैं कितना वायरस वो रोक रहा है, कितना बैक्टीरिया रोक रहा है, कितने डस्ट को पेनिट्रेट करने से रोक रहा है. तो दैट इज हम उसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं. और वो डिपेंड करती है आपने कौन सा फाइबर यूज किया है, कैसे फाइबर्स को अरेंज किया है और कैसे उन सबको बाउंड किया है, बॉन्ड किया है. सो दिस इज द वीडियो, आई विल शो यू. Wait. See, this is the, I hope everybody can see the video. This is visible. No, ma'am, video is not visible. Okay, sir. Now it's visible. Yes, ma'am. Sir, it's visible. हाँ मैम, visible है. ये देखिए, ये नॉन वोवन का पूरा वो है, प्रोसेस लाइन है. ये फॉर्मेशन हो रही है पहले, इसमें फाइबर्स को ओपन किया जा रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. उसके बाद वेब फॉर्मेशन करी जा रही है. ये देखिए, ये ओपन फाइबर है, फिर इसको रोलर्स के थ्रू पास करके ये ओपनिंग हो रही है फाइबर्स की. अब ये वेब फॉर्मेशन हो रही है फाइबर्स की. उसके बाद दिस स्प्रे टेक्निक से उसको बॉन्ड कर दिया जा रहा है. कहीं पे हीट एंड प्रेशर का यूज होता है, कहीं पे नीडल पंचिंग करी जाती है, हीटेड रोलर्स यूज करे जाते हैं. ये देखिए, दिस इज नीडल पंचिंग, जो मैंने आपको बताया था. नीडल पंचिंग से आपके जो फाइबर्स हैं उनको एंटेंगल करके, ये देखिए कितनी पतली शीट हो गई. ये वेब फॉर्मेशन कितना मोटा था, यहाँ पे देखिए, ये देखिए. एंड विद द हेल्प ऑफ नीडल पंचिंग इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ थिन फैब्रिक. यू कैन सी दिस इज हाउ नॉन वोवन इज मेड. जो नीडल बेड्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और फाइबर्स को एंटेंगल कर रहे हैं. कितनी पतली शीट आपकी फाइबर्स की यहाँ पे बनके तैयार हो गई. Only from the fibers you are making out the fabric. So this was the one video. I have one more. This video is visible.
You can see the video. No, ma'am. Now it's visible, I think so. Yes, ma'am. Chances are your ये product देखिए will use नॉन some वोवेंस को kind of कहाँ कहाँ fabric, यूज किया and जाता that है? fabric जियो is going टेक्सटाइल्स, to need some हाइजीन, special qualities प्रोटेक्टिव that's going to अपैरल्स, perform properly. वाइपर्स, Qualities like absorbency क्योंकि or इनमें elasticity एब्जॉर्बेंसी or अच्छी है, strength or इलास्टिसिटी flavor अच्छी है, types or स्ट्रेंथ shock अच्छी होती है, absorption ये or जलते नहीं some है इजीली. combination of these So special these properties, characteristics. इन properties Where ने do you हमें find convince a कर fabric दिया, that and we does people are exactly what you more want it to focusing do? towards the use Today, of more and non-wovens. more product designers are simply inventing their dream materials by working with companies that make non-woven fabrics. ये देखिए ये non-woven fabrics हैं. Chemical, thermal, or mechanical means. By varying the वही है processes web and the raw formation. material used, these carefully engineered fabrics can create some pretty देखिए remarkable कितना पतला advantages. non-woven fabric, आपको सिर्फ woven जैसा, ये carriage bags में, trolley bags They में can be strong non-woven enough to use हो use रहा in है, constructing टर्फ्स clothes में and non-woven rooms. use किया They जाता can be है. soft enough to ये protect जो our wet most wipes हैं, delicate baby surfaces. diapers हैं, They can उसमें be non-woven sandwiched use किया जा together रहा to है. create a fabric Sanitary with napkins layers में that have non-woven different use किया properties. जाता है. They can be molded कार to a के precise interiors shape. में you can see the They can make us non-wovens. feel both attractive These and disposable comfortable. food eating Some can items, they are absorb made up of several times their non-wovens. own weight in water, oil, or other fluids. So non-woven, They even can be the made medical gossamer thin. surgical or gowns, extremely their thick. hats, their masks, Dense. everything is made up of. or These are porous. non-woven filters. While woven products can be produced at only a few feet per minute, non-wovens can be manufactured economically at 1,000 or more feet per minute. ये देखिए They इसका are so प्रोसेस कितना inexpensive फास्ट है that they're non-wovens caught का. and cut in any direction. इसको They किसी can भी be डायरेक्शन used as में, जैसे हम replacements बोलते for हैं traditional वोवन के textiles केस in में कि almost any इसको ऑफ application. बायस नहीं कट करना चाहिए, तो All इसमें these देयर इज नो capabilities लिमिटेशन are ऑफ फॉर carefully कटिंग, किसी engineered भी into डायरेक्शन में each आप कट कर fabric सकते हैं. using a range of natural and synthetic materials तो and डिफरेंट various सिंथेटिक bonding नेचुरल techniques. फाइबर भी यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक भी Non-wovens यूज begin कर as सकते हैं इसको loose बनाने web के लिए. mattings that ये can be देखिए formed ये through वेब several है. processes. In the dry lay process, दिस इज ड्राई ले. fibers are mechanically combed or carted into position. जो मैं वेब फॉर्मेशन की बात कर रही Or थी, ड्राई laid ले, down by एयर a ले, controlled airstream. एयर के स्प्रे से आप वेब को ले कर रहे हैं. Or they can be transported by देन इज water. वेट ले, the wet वाटर lay की हेल्प process. से आप उसको लेइंग डाउन कर रहे हैं. Then the fibers are joined together by resin. अब फाइबर को ज्वाइन करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग जो मैंने बताई थी, दैट इज रेजिन का यूज कर सकते हैं, बाइंडिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं. Some are Then is punched with needle thousands bunching. of needles to You can see interlock the fibers, कितना फास्ट प्रोसेस है. while others are ये meshed देखिए by वाटर के high-velocity water हेल्प से jets. कैसे फाइबर्स बाउंड हो रहे हैं, कितना पतली शीट As an बन रही है. alternative, दिस इज स्पन बॉन्डिंग एक्चुअली यूज्ड इन द and इंडस्ट्री. melt-blown processes, दिस इज मेल्ट ब्लोन. Resin ये pellets पॉलीमर्स are हैं, melted. इनको मेल्ट करके फिर and the fibers आपस में blown जोड़ दिया against जाता a है moving surface इन दी to फॉर्म ऑफ create a वेब. fabric ये in a देखिए single मेल्ट ब्लोन step. फैब्रिक कितना पतला है. These processes create an incredible variety of fabrics. In fact, you'd probably be Even surprised bandages at the में many इसका ways use your हो रहा life है. is touched by non-wovens. Non-woven absorbent products like baby diapers and sanitary napkins provide अडल्ट superior इनकंटीनेंस performance पैड्स में and भी इनका convenience. यूज किया जाता है नॉन Consumer वोवेंस का. wipes are one of the Wipes largest में इसका uses use for हो रहा है. non-woven fabrics. Industrial non-woven wipes are widely used to clean up in automotive, printing, and other क्लीनिंग plants. वाइप्स के And यूज में these इसको limited यूज किया use जाता wipes है. create less Even the pollution ये than देखिए cloth rags, which must be laundered. Using non-woven linings and pads, fashion designers give shape to their creative visions. तो नॉन वोवन while हम wearing फ्यूजिंग्स different यूज kinds of करते हैं apparel, अपने protect workers गारमेंट from को exposure शेप to देने workplace के लिए. hazards, and shield sensitive products from contamination by humans. Medical products, such मेडिकल as प्रोडक्ट्स, operating room इनके जो gowns and सर्जिकल drapes, गाउन्स है, protect दे आर both यूजुअली मेड caregivers अप ऑफ and नॉन patients from वोवेंस. infection. They provide a breathable barrier that transmits moisture vapor, but not fluids, and they cost less per use than laundered products. Non-woven fabrics make purities and from tea bags. ये देखिए टी बैग्स में भी आपका नॉन वोवन यूज हो रहा है. द The कार्पेटिंग आर carpeting मेड अप can ऑफ be a नॉन non-woven वोवेंस. fabric too. Just one of a growing number of tough, durable applications, along with the furniture, बेडिंग्स में drapes, आपका and ये जो quilts पिलोस that को use फिल करने के non-woven लिए नॉन components वोवन in इज बीइंग homes यूज्ड. around the world. कर्टेन्स में नॉन वोवन यूज किया जाता है. Very few can still
fall asleep dreaming of non-woven, but most do fall asleep with mattresses. Mattresses are being made up of these sags. ये जो बोरियां हैं, Non-woven's कार का durability and इंटीरियर है. foldability are important advantages for automotive trim. A special group of non-woven ये देखिए सड़क बनाने के लिए नॉन वोवन का यूज किया जा रहा है. tracking and asphalt. Controls This is erosion geotextile. and keeps our landfills safe and लैंड को sealed. बचाने के लिए जहाँ पे Farmers सॉइल use गिरती है, non-wovens पहाड़ों to पे नॉन control वोवन का weeds यूज किया and जाता है. conserve moisture for क्रॉप their की crops. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नॉन While वोवन का यूज appreciate किया their जा रहा है. strength and So ability to every stay here quiet. and there you can see non woven is there. Stopping bullets. Tech designers demand a certain non-woven print. So this was all about non wovens. I hope you people have understood what is the utility of non woven and how they have captured our lifestyles. So coming to few questions. Sir, can I ask the questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can. So first question is, I hope now you people have understood what is knitting, what is non-woven. The concepts are clear. What is directly made from the fibers, woven, non-woven, knitted or braids? Shivangi, ma'am, can you help me? What type of help you want, Shivangi? Please answer this question. Yes, it's non-woven. Next question is, what are the different web formation methods? Air laid, wet laid, parallel laid, all of these. Yes, Poonam, Neha, all have given the correct answer. Next, Poonam, it's not here. Anybody else? What are the different web formation methods? Air laid, wet laid, parallel laid, all of these. I am asking about the web formation. Yes, Shweta, it's the correct. All of these are the web formation. Even the melt blown, spun, bond, these are all web formation methods. Remember, please. Yes, Poonam, now it's correct. Next is, tea bags are made up of woven fabric, non-woven, knitted or none of these. Yes, Shweta, it's the correct. It is made up of non-woven. So even the question can come about the mask. You people should remember everywhere we people are using non-wovens nowadays. So that was all for today. I hope everybody have enjoyed the lecture and must have learned. Apart from enjoying, you must have learned something out from here. And please go through it once so that you people remember the basic fabric formation processes, because we as a fashion designer need to know what are the different fabric formation processes. So bye for today. Stay safe, stay healthy, and stay updated with latest knowledge. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir.